हाँ, ना राजा समझ आया ना रानी। एनीवे, मेरा मतलब है व्हाट इज़ गोइंग ऑन, कि मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं आई एम जस्ट सो कंफ्यूज्ड अबाउट दिस होल कॉन्सेप्ट बिकॉज, और मैंने पहले बोला भी है कि भाई फैसल का जो कैरेक्टर है ज़ावियार, व्हाट हैज़ हैपेंड टू हिम? मेरा मतलब है why is he gone to this special needs sort of child sort of process? ये होता नहीं है ना मुकर्रम, इट्स नॉट नॉर्मल। ये जो दिखा रहे हैं इसका सेंस नहीं बन रहा, और मैं अभी भी वही कह रही हूँ। इन्होंने शुरू में एक्सप्लेन तो किया था कि मेडिकली ऐसी चीज़ पॉसिबल है। नहीं है, कभी नहीं सुना ज़िंदगी में। ट्रॉमा डज नॉट कॉज दिस, ट्रॉमा कॉजेज अदर थिंग्स, इट कॉजेज डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्किज़ोफ्रेनिया. It doesn't cause this. This is like he's basically gone through a whole process of regression, you know. वो regress करके कोई बचपने में चला गया, वो ये नहीं होता. I've never heard of this in my life. I could be wrong. Please, if there's any psychiatrist or psychologist watching this, please correct us. Sometime आप इतने ज़्यादा traumatized होते हैं कि आप उस टाइम फ्रेम में चले जाते हैं जहाँ पे आप स्टक हो जाते हैं। मुझे जो समझ आती है, मुझे लग रहा है कि वो उस एज में जाके उसके ब्रेन स्टक हो गया है। मैंने तो कभी नहीं सुना। शायद अगर है तो कोई करेक्ट कर दे मुझे, but I find it very unbelievable and very strange. I find the whole concept very strange. I mean, not to take away from the work and the effort Faisal is putting in. Faisal is putting in a huge effort. I'm not taking anything away from that. लेकिन ओवरऑल कॉन्सेप्ट में मैंने ये कभी नहीं सुना कि ट्रॉमा की वजह से कोई ऐसे रिग्रेस कर जाए और अपने बचपने में चला जाए, या retardation or whatever you'd like to call it. It's a very strange process. We've heard of other things happening in trauma, you know, nervous breakdowns, ऐसी चीज़ें होती हैं trauma में. So anyway, I don't know. So for me, at this point, I'm still very confused about how I really feel about this project, really, overall. बाकी सारी चीज़ें तो background में चली जाती है ना, अभी तो मुझे concept ही नहीं समझ आ रहा है इसका. So no. क्या बेचारा, वो उसकी भी एक, अली ने मुझे last week जब हमने इसको review किया था ना, तो week before last, he sent me a thing, note on how people who have kidneys cut out, उनके साथ क्या हो सकता है. हाँ. But I just think that the link जो आ रहा है ना between the two households, that's also quite weird and unbelievable. तो मतलब एक बाप इतना empowered, इतना अमीर, इतना सब कुछ could get him any kind of treatment. उसको. हाँ, obsessed, and he can get him treatment of any kind, यार. I mean, he's just having him sit with a psychologist once in a while, जो दोस्त बनना चाह रही है उसकी. And he's found his girl in the neighborhood. I mean, it doesn't make sense. मुझे कुछ समझ नहीं आ रही इसका क्या हो रहा है, you know? No, but like I said, there's no story, na. So there's what do you talk about? There's no story arc. There's no character arc. Faisal has just been that same person. Even if we go into his back, अगर साथ साथ चल रहे होते ना दोनों चीज़ें, कि उसके पिछले उसमें क्या हुआ था, why did he become the way he is right now, वो चीज़ें साथ साथ चल रही होती, that be so much more interesting. You're talking about the same thing. हाय बेचारा उसके साथ ये हुआ, उसके साथ अब ये अच्छा है, ये अक्सर ये होता है कि ऐसे ड्रामों में क्या होता है, जब हम रिव्यू कर रहे होते हैं ना, तो we lose interest so fast and we start doing things like household chores and packing unpacking and चलो चाय पी लेते हैं. मेरा मतलब है कि आपका इंटरेस्ट ही ख़त्म हो जाता है. These are those sort of dramas, unfortunately. मेहनत तो सब ने की होती है, तो दुख होता है जब ऐसा ड्रामा नहीं चलता, तो दुख ही होता है, because obviously people have worked hard, especially the actors. Of course. But I feel that the link between the two households is not, बहुत कच्चा पक्का काम है अभी. So both writer and director, at this point I'll give a 5 each. 5 each. और मेरा सवाल ये नादिया आपसे कि अतिका जी आपसे भी, कि वो किस ऐसी क्या बेहतरी आई थी उसके अंदर कि उन्हें लगा कि लड़की बहुत इंपॉर्टेंट है. मुझे वो बेहतरी समझ नहीं. मुझे नहीं. There was nothing. उसने ऐसा क्या किया था जो खुशी हुआ है बस, और कुछ नहीं. उसने कोई बात शायद मान ली थी कि खुश हो गया मैं ये कर लूँगा, तो उन्होंने कहा वो अच्छा इस लड़की को बना दे. It's a very कच्ची स्टोरी. There is no baseline to it. बस एक आइडिया आया और उस आइडिया को उन्होंने सही तरह एक्सप्लोर भी किया. जैसे ये जो भी ड्रामा चल रहा था अहद और उसका मीम से मोहब्बत, उसमें उस बच्चे को एक बड़ी मूवमेंट पे उसको बोलता है जब वो जाने लगती है, उसके अलावा थ्रू आउट वो साइलेंट था. तो वो इम्पैक्ट हुआ था उसका कि अच्छा ये इस मूवमेंट में बच्चे की आवाज़ निकल रही है. तो अभी अगर ऐसी कोई चीज़ होती, छोटी सी झलक दिखाते, वो झलक रजिस्टर नहीं हुई कि जिसकी वजह से बाप इतना हो गया कि मैं तो खुद सवाली हूँ, माँ बाप की मिन्नतें कर रहा है, उसकी भी मिन्नतें कर रहा है, उस लड़की की भी, और वो लड़की आगे से कह रही कि नहीं मुझे ये जॉब नहीं चाहिए, जो कि मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती कि इस वक्त तो तुम्हें कहीं से तुम लोग गुर्दा बेचने वाली सिचुएशन में आ चुके हो. नहीं, मुझे लगा एंगल कुछ और है. बाप ये सोच रहा है कि लड़की है ना, जवान लड़की है, तो जवान मर्द फैसल, उसमें he's a young man, so he's probably thinking from in the infatuation of the girl or whatever this boy is feeling, he'll probably improve and listen. I think so. She's right, because
वो कहता भी ना कि मैंने इसका बचपन बहुत एंजॉय किया हुआ, लेकिन अब मैं इसका बचपन बहुत मुझे तकलीफ दे रहा है। हाँ, तो और वो बार-बार उसको वो जाए। बड़े उसमें देखता है। ऑल्सो व्हाट इज दैट अदर बच्चा, वो जो रानी के साथ नहीं होता तो वो है? इमेजिनरी नहीं, तो वो राजा है, उसका नाम राजा रानी जो नाम है ना टाइटल का। Yeah, but who is that बच्चा that बच्चा? comes and goes, she keeps saying राजा राजा राजा। I think यही it's some होगा। kind of नहीं ये नहीं होगा, This has to ये be नहीं होगा। somebody I think it's somebody she's lost as a हाँ, वो किसी राजा के इंतजार में है। and then never got in touch. ये उसने अपना एक बनाया हुआ अपना इमेजिनरी एक राजा रानी वो है और एक्चुअली। कितना गंदा कटिंग उसके ऊपर की हुई है। अमीन इकबाल जैसा डायरेक्टर जिसने फिल्में भी बनाई हुई है, अमीन व्हाट आर यू डूइंग? बहुत ही आई एम सॉरी नो, मुझे अभी मैंने देखा है कि अमीन इकबाल, यू सेड इट कि अमीन इकबाल इज द डायरेक्टर। अमीन इकबाल लास्ट एपिसोड में फारूक रिंद पे ऐसे हो गई थी, अब आप अमीन इकबाल पे ऐसे तो मुझे अब डिसअपॉइंट कर रहे हैं ना लोग। क्या कर रहे हैं? या तो इनको गंदे स्क्रिप्ट्स मिल रहे हैं, दे आर लाइक मजबूर टू डू दिस, या क्या है? क्यों कर रहे हैं? अच्छे डायरेक्टर्स नहीं उठाते। नहीं, उन्होंने एक इंटरेस्टिंग स्टोरी तो उठाई है, स्टोरी लाइन अच्छी थी कि जो अब हमने कहा अभी आप देखा कि ऐसी चीज हो सकती है तो इसको फिर करना और तरह और चाहिए। फैसल का बच्चा जो है चाइल्डहुड वाला, वो बहरूपिया में टेडी बेयर वाला वही वाला बच्चा है जो उसमें तो चाइल्डहुड बेचारा वही फैसल तो एक ही है ना। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि कुछ यू हैड टू, द एक्टर, द राइटर आल्सो नीडेड टू वर्क ऑन दैट एंड द एक्टर आल्सो तो आपकी राइटिंग डायरेक्शन पे क्या राय है? नंबर दे दो। 4.1 फॉर राइटिंग 4.1 फॉर राइटिंग। तो अब मैंने कहा था 4 नहीं दे सकते, लेकिन 1 तो दिया है ना मैंने पॉइंट ऊपर। नहीं 4 दे सकते हैं। अच्छा 4 दे देती हूँ मैं, फिर 4 दे दिया चलो मैंने। 4.1 दे दिया। नहीं बिल्कुल नहीं। आप Expression. शी इज वेरी प्रिटी। No, and she's pretty, but she's not is overly that made what up. we're giving her marks on? No, but I can we give are. marks on But we are. But to her credit, we know she's very pretty. to her credit, she's not heavily made up in makeup and stuff, which is good because अक्सर लड़कियों को ये प्रॉब्लम होती है कि वो बड़ी तैयार होके और रिंगलेट्स, हर लड़की अपनी रिंगलेट्स निकाल के आ जाती है। तो to her credit, she has stayed within character as far as look and feel is concerned, and also overall I think expression wise and performance wise she's done a good job, not bad. Faisal, again because maybe I know him personally, मैं उनको जानती हूँ और मैं मेरे लिए ना वो इस कैरेक्टर में उनको देखने में हज़म ही नहीं होता। although वो मेहनत बड़ी की और काम बड़ा अच्छा किया, लेकिन for some odd reason I just can't accept seeing Faisal in this role. For मुझे भी लग रहा है कि बहुत एक्टिंग कर रहे हैं। ऑल्दो मैं कमेंट्स पढ़ रही थी एपिसोड के नीचे, ऑडियंस को फैसल की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी लग रही है एंड आई एम सो हैप्पी फॉर हिम बिकॉज ऑब्वियसली एक्सेप्टेबिलिटी है ऑडियंस की, बट आई फाइंड इट एंड देयर वर सम सीन्स द वे ही वाज यू नो हिज आईज एंड हिज एक्सप्रेशन एंड ऑल वर जस्ट ब्रिलियंट, बट आई थिंक मेरा एक पर्सनल प्रॉब्लम है, आई कांट सी फैसल लाइक दिस, आई जस्ट हैव टू सी हिम एज अ रेगुलर गाय यू नो. So I'll give her, I think I'll give them both a 6. 6, good job. नादिया अफगान, आप बहुत गहरी सोच में थी। आप क्या आपने राजा रानी में इतनी गहरी, मैं वहाँ सोच रही थी कि अच्छा वहाँ पे अच्छा I think she's a pretty girl, but mostly our heroines are pretty. ये क्राइटेरिया होता है कि बहुत प्यारी सी लड़की ले लेनी है. I think अभी बहुत काम करने की ज़रूरत है इस बच्ची को, और बहुत क्राफ्ट पे भी बहुत काम करने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा. इतने कोई मुझे एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस नहीं लगी, ना कोई मुझे आई थिंक मार्जिन भी नहीं था अभी इतना ज़्यादा. क्या अच्छा हाँ, बाप का गुर्दा निकल गया था. बाप का गुर्दा निकल गया था, उससे पहले भी आई थिंक है देयर इज, मुझे आई फील देयर इज समथिंग मिसिंग, आइदर शी इज नॉट फीलिंग द सीन्स और लाइक डायरेक्ट. कुछ एक्टर्स होते हैं जिनको डायरेक्शन की ज़रूरत होती है, नॉट एवरीबडी कम्स फ्रॉम घर. और हमें, मैं एट टाइम्स कहती हूँ कि मुझे ऐसा नहीं समझ में आ रही है, मुझे सरमत नहीं समझ